Okay. So now we are going to start monitoring and controlling. Monitoring and controlling or cost control have certain outputs, and those outputs are performance measurement, forecasted completion, information, requested changes, recommend corrective actions and updates to project management plan, cost estimate, cost baseline, organization process, assets. So the thing to consider is cost controlling is something that starts with the start of the project and ends at the finish of the project. So all the things that you are going to learn on cost estimation, that you are going to have as an output at cost budgeting, all that comes under cost control. Why is that so? Because when you are going to start with cost estimation, that means you are already started cost control. When you are going to budget the whole project, that means you are again doing cost control. So everything that comes under the cost process within the project, that comes under the parameter or under the term of cost control. तो everything जो भी आपने अपने रिक्वायरमेंट में चेंज किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कहीं पे अपडेट किया है, कॉस्ट एस्टिमेट की है, बेस लाइन बनाई है, प्रोसेस एसेट्स जो हैं वो देखे हैं आपने कि कौन कौन से प्रोसेस एसेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज किए जा सकते हैं, फोरकास्ट किया है आपने चीज़ों को, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दैट comes under cost control. Now, the basic principle of cost management is it comes with certain terms that you have to know about it because you are learning a project cost management, so you should have to know the little terms of project cost management. Most members of an executive board better understand and are more interested in financial terms than IT terms. So IT project managers must speak their language. अब मोस्ट ऑफ टाइम होता यही है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात समझाती हूँ कि आईटी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट, आपने भी पढ़े होंगे या आपने सुने होंगे कि कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स को जो ऑनर्स कर रहे होते हैं या एससी के स्टूडेंट्स को बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो कोर कोर्सेज के अलावा सपोर्टिव कोर्सेज या इलेक्टिव कोर्सेज के तौर पर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स आती है, कहीं अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही होती है, कहीं पे स्टैट्स पढ़ाई जा रही होती है, मैथमेटिक्स के कुछ कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे होते हैं। उसकी बेसिक थिंग यही है या उसकी बेसिक रीज़न यही है कि एक तो वो आपके आईटी के अंदर समाउ दी अदर इन्वॉल्व होते हैं, दैट मैथ्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, या कुछ थोड़े अपर रिसर्च लेवल पे चले जाओ तो आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं जब आप ग्रिड्स वगैरह पढ़ते हैं, स्मार्ट ग्रिड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और कोर्सेज हैं जो कि आपके मेन कोर्स का पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप अगर किसी भी ऐसे बोर्ड से, एग्जीक्यूटिव कमेटी से बात करते हैं जिन्होंने आपके साथ कॉस्ट को डील करना है प्रोजेक्ट की, तो बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल यू शुड आल्सो हैव टू have the knowledge of project cost management, and for that you should have to speak a little terms of project cost management or financial terms. So first thing is profit. What profit is? Profits are revenues minus expenditures. Now, what revenues are or what expenditure is? Revenues या expenditures में से expenditure को अगर मैं पहले elaborate करूँ तो expenditure comes with the term expenses. Expenses जैसा कि आप सबको पता है जो कि आप invest करते हैं अपने ऊपर किसी भी एक चीज़ को fulfill करने के लिए। आप कुछ खरीदते हैं, आप expense करते हैं। आपने मार्केट में जाके कुछ कोई ग्रॉसरी की है तो यू एक्सपेंड समथिंग। तो अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, कोई भी खर्चा किया है, तो वो और रेवेन्यू उससे क्या जनरेट हुआ, व्हाट फ्रूटफुल you got after that expenditure is your revenue. So what profit is? It's basically revenues minus expenditures. That comes with profits. दूसरी चीज जो है वो आपके पास आ जाती है प्रॉफिट मार्जिन। कितने मार्जिन पे या कितनी रेशियो पे आपने प्रॉफिट अर्न किया है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ रेवेन्यूज टू प्रॉफिट्स। रेवेन्यूज की प्रॉफिट में से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पलीफाई उसने इस तरह से किया है, फॉर एग्जाम्पल $2 प्रॉफिट पर $100 रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ था $100, प्रॉफिट आपको उसमें से कितना हुआ है $2, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या बनेगा 2%।
ओके। अगली चीज है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। Life cycle costing considers the total cost of ownership or development plus support costs for a project. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर क्या आ जाता है, आपके प्रोजेक्ट के ओनरशिप की टोटल कॉस्ट, क्योंकि लाइफ साइकिल है ना पूरा प्रोजेक्ट का, तो उसकी पूरी कॉस्ट आ जाती है, या डेवलपमेंट प्लस सपोर्ट कॉस्ट आ जाती है। अब डेवलपमेंट प्लस सपोर्ट कॉस्ट क्यों बोला है, बिकॉज डेवलपमेंट इज द फर्स्ट फेज एज यू ऑल नो, एंड सपोर्ट इज द नेक्स्ट वन. So everything that comes with the development phase or with the support phase comes under life cycle costing. A project could take 2 years to build and be in place for 10 years. Cost and benefit must be estimated for the entire lifetime of the project. मतलब कि फिर सिर्फ 2 साल की डेवलपमेंट के ऊपर आपने ये डिसाइड नहीं करना कि आपके कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है या लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, बल्कि क्योंकि अब ये अगले 10 सालों तक यूटिलाइज हो सकता है, तो आपको 12 सालों की कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो आपको डिड्यूस करनी है. Cost of software defects. As you all know that with the software there comes a term defects or bugs. So what is the cost of those defects are? Here comes with the table. Phase of software development यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे, और relative cost to repair defects यहाँ पर दिए हैं. For example, आपके पास पहला जो आपका फेज है वो है फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस का फेज है. अब रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस के फेज के अंदर उसने कहा कि जो आपके पास रिपेयर डिफेक्ट जो आ सकता है वो आ सकता है 1%. आप इसको परसेंट कर लें, आप इसको 1 टाइम्स कह लें, या आप इसको किसी भी एक यूनिट के साथ डिड्यूस कर दें. फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं $1. ठीक है. तो रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस के ऊपर जो आपकी रिपेयरिंग डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट्स के लिए जो रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी $1. अगले स्टेप पे चले जाएंगे. अगर आप कॉस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग के ऊपर, मतलब कि आप रिक्वायरमेंट से बाहर आ गए, कॉस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग के ऊपर अगर आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो फिर उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट क्या आएगी $5, मतलब 5 टाइम्स ग्रेटर दैन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला पार्ट. तीसरे पर आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग. अब ये आपको पता है कि ये यूनिट टेस्टिंग से तो पहले ही है, ऐसा ही है. तो अगर आप इस फेज में आ जाते हैं तो फिर आपने जो भी किया है, आपने जो डिफेक्ट है उसके ऊपर आपने जो आपका खर्चा लगेगा या जो आपकी डिफेक्ट कॉस्ट लगेगी वो होगी 10 टाइम्स, लाइक 2 टाइम्स ग्रेटर दैन द प्रीवियस वन. इस तरह से बीटा टेस्टिंग करेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट रिपेयरिंग डिफेक्ट आएगी वो आएगी $15. इस तरह से पोस्ट प्रोडक्ट रिलीज आएगा तो वो आएगा $30. तो ये आपके पास सारी की सारी रिपेयरिंग कॉस्ट के डिफेक्ट्स आ गए, रिपेयरिंग डिफेक्ट्स की कॉस्ट आ गए. It's much more cost effective to spend money on defining user requirements and doing early testing on IT projects than to wait for problem to appear after implementation. As you can see कि जितना early आप अपने cost को estimate कर सकते हैं, defects को estimate कर सकते हैं, उतना ही आप minimum कर सकते हैं अपनी cost को, उतना ही आप मिनिमम कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप जाते जाएंगे अगली बड़ी स्टेजेस की तरफ, उतनी ही ज्यादा आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो मैक्सिमम होती जाएगी. इट्स मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू स्पेंड मनी ऑन डिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड डूइंग अर्ली टेस्टिंग. ये मैंने आपको बता दिया है. इट वुड कॉस्ट $1,000 to repair a software defect in the requirement and analysis phase. $1,000 लगेगा अगर आप रिक्वायरमेंट्स पे ही खर्चे पूरे कर लेते हैं. बट इट वुड कॉस्ट $30,000 टू फिक्स द पोस्ट प्रोडक्ट रिलीज. रिलीज से पहले अगर आपको कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो 30, यही वाली बात लिखी हुई है. रिक्वायरमेंट के टाइम पे $1 या $1,000, और आपके पोस्ट प्रोडक्ट रिलीज के ऊपर जाके $30,000. और इसी तरह से अगर आप इसको जिस तरह से बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्रीज करता जाएगा, उस तरह जो है वो आपके जो पर रिपेयर जो है, आपके जो पर डिफेक्ट है, आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी. What went right? A leading telecommunication company estimated the cost of a software bug or defect at 3 stages. 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपके कॉस्ट की जो आपके प्रोजेक्ट थी उसकी कॉस्ट एस्टिमेट की गई. That is after coding, after manual inspection, and at
बीटा रिलीज। 3 जगह पर आपके कॉस्ट को जो है वो एस्टिमेट किया गया है, कोडिंग के टाइम पर, मैनुअल इंस्पेक्शन के टाइम पर और बीटा रिलीज के टाइम पे। और क्या रिजल्ट आया है? तो कॉस्ट टू करेक्ट द डिफेक्ट इंक्रीज विद ईच स्टेज फ्रॉम 2000 टू 10,000 टू $100,000। जैसे जैसे आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसकी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, वैसे आपके पास उन स्टेजेस के अंदर आने वाले डिफेक्ट्स की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं और इधर आपके पास आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉस्ट मैनेजमेंट में somehow the other यूज हो रहे होते हैं? These principles are, the first one is cash flow analysis. कैश फ्लो एनालिसिस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि आपको एस्टिमेट देता है आपकी एनुअल कॉस्ट का और आपकी एनुअल कैश फ्लो का। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैश फ्लो एनालिसिस डिटरमिन द एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट फॉर अ प्रोजेक्ट एंड द रिजल्टिंग एनुअल कैश फ्लो। आपके पास एक साल के अंदर अंदर कितनी कॉस्ट लगनी है या कितने बेनिफिट्स आपको मिलने हैं एक प्रोजेक्ट से, वो आपका कैश फ्लो एनालिसिस बताता है। और इसके अंदर आप कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं एनुअली। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ कंपनीज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो है तो आपके कैश जा भी रहा होगा और आ भी रहा होगा ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। अब ये पीरियड जो है ये एनुअल भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। The analysis begins with the starting balance and generates an ending balance after accounting for all cash receipts and paid expenses during the period. अब एनालिसिस करता क्या है? एनालिसिस का काम यही होता है कि आपने हर एक चीज के ऊपर कीन ऑब्जर्वेशन देनी है और सोच विचार करनी है। तो एनालिसिस वह है जो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग बैलेंस से और एंडिंग बैलेंस तक जाता है। और आपने इसके अंदर क्या क्या देखना होता है कि आपके कैश रिसिप्ट्स क्या हैं, कितनी आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, कितने टाइम के अंदर पे किए हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास पैसे आए हैं तो कहाँ से आए हैं, कितने टाइम के लिए आए हैं और कितने आए हैं। The cash flow analysis is often used for financial reporting purposes. तो आप फाइनेंशियली चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर फोकस करते हैं। अगली चीज आ जाती है आपके पास टेंजिबल कॉस्ट, और टेंजिबल के बाद अगली चीज आपके पास आ जाएगी इनटेंजिबल कॉस्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट्स आर दोज कॉस्ट और बेनिफिट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली मेजर इन डॉलर्स। जिसको मेजर किया जा सकता है उसको टेंजिबल बोलते हैं और जिसको मेजर नहीं किया जा सकता उसको intangible बोलते हैं। So a task that was allocated $150,000 but actually cost $100,000 would have a tangible benefit of $50,000 if the assets allocated are used for other projects. So अगर आपने इस तरह का कोई काम किया है कि आपने जब कॉस्ट को एस्टिमेट किया था तो एस्टिमेट किया था $150,000 का, और जब वो लगी तो लगी वो सिर्फ 100, तो इसका मतलब है कि आपने $50,000 को सेव कर लिया है somehow the other, वो अब आपके अपने या आपके बेनिफिट में आ जाता है। इनटेंजिबल कॉस्ट क्या होगी? जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो इनटेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट्स आर कॉस्ट और बेनिफिट्स दैट आर डिफिकल्ट टू मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, जिनको आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते। कॉस्ट रिसोर्सेज यूज टू रिसर्च रिलेटेड एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट बट नॉट बिल्ड टू द प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि ऐसी कॉस्ट जो कि आपने कहीं पे रिसर्च करते हुए, जो प्रोजेक्ट की रिसर्च करते हुए लगाई थी लेकिन वो मेन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, सिर्फ रिसर्च का पार्ट है, तो वो इंटेंजिबल रहेगी। इसी तरह से बेनिफिट दैट इज गुडविल, प्रेस्टीज, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, नॉट नेसेसरीली नॉट इजीली ट्रांसलेटेड इन डॉलर्स। मतलब कि ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो somehow the other आपकी रूल बुक के अंदर आ जाती हैं या आपके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आ जाती हैं, जिसमें आपकी प्रेस्टीज शामिल है, आपकी जो आपकी जनरल स्टेटमेंट शामिल है, आपका गुडविल शामिल है, आपका गुड जेस्चर शामिल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनको आप डॉलर में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो सारी की सारी इनटेंजिबल कॉस्ट हैं और ये भी आपके कॉस्ट मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स का पार्ट है। अगली चीज़ है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो आपने पैसे लगाए हैं उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। सैलरीज, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परचेज स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं
तो आपको एक सैलरी मिल रही है, तो वो आपकी सैलरी जो है वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से डायरेक्ट कॉस्ट है। और इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, हार्डवेयर या कोई टूल खरीदा है, तो वो जो आप पैसे खर्च रहे हैं वो भी direct cost. Indirect costs are the costs that are not directly related to the product or services of the project but are indirectly related to performing the project. अब वो चीज़ें जो डायरेक्टली तो शामिल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको हेल्प कर देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेपर टॉवल्स, आपके वहाँ पे पड़ी हुई आपके ऑफिस के फर्नीचर, आपके ऑफिस की लाइटें, आपके ऑफिस बॉयज, उनको दिए जाने वाली सैलरीज, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो आपके ऑफिस बॉयज का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको जगाने के लिए, आपको प्रोजेक्ट के लिए होशमंद रखने के लिए आपको वो टी टाइम देंगे, वो आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे, तो उसके ऊपर जो भी खर्चे आएंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट आएंगे. Sunk cost is the money that has been spent in the past when deciding what project to invest in or continue. You should not include sunk cost. अब संक वैसे कहते हैं डूबने को, तो आप इसको बोल सकते हैं डूबी हुई रकम. अब आपने क्या किया था कि आपने कहीं पास में पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और जब आपने ये डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने पैसे लगा ही दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब आप अगली दफ़ा भी उसके ऊपर पैसे कंटिन्यू करो सिर्फ इसलिए इसके ऊपर पहले पैसे लगाए जा चुके हैं. To continue funding a failed project because a great deal of money has already been spent on it, it is not a valid way to decide on which projects to fund. Sunk costs should be forgotten. वो कह रहा है कि अब आपने पहले पैसे लगा दिए और अब आप उसके ऊपर बैठ के सोच रहे हैं, तो आपका sunk cost जो है वो ऐसा है जिसको अब आपको भूल जाना चाहिए, ये अब आपके हाथ से बाहर की बात. Learning curve theory states that when many items are used or tasks are performed repetitively, the unit cost of those items decreases in a regular pattern as more units are produced or more tasks performed. अब आपके पास लर्निंग कर्व थ्योरी क्या कहती है, वो आपको ये कहती है कि जब आप बहुत सारे आइटम्स या बहुत सारे प्रोडक्शंस दे रहे होते हैं रेपिटेटिवली, तो जो आपकी यूनिट कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, वो कम हो जाती है. दिस इज लर्निंग कर्व थ्योरी. और ये बात सच भी है कि अगर आपने एक जगह पर एक काम शुरू किया हुआ है, आप वो थोड़े लोगों के लिए करो या आप ज़्यादा लोगों के लिए करो, आपने एक दफ़ा काम स्टार्ट कर दिया तो अब वो होके रहेगा, आपने करना है. अगर आप कम लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे कंपैरेटिवली ज़्यादा लोगों से. इसी तरह से यहाँ पर भी वो कह रहा है कि अगर आपने किसी भी एक पैटर्न के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और आपकी हैबिट डेवलप हो गई है, तो इसका मतलब यही है कि आपने उसी स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर जो है वो काम करते रहना है. और आपने उसके ऊपर उसी पैटर्न के ऊपर रहते हुए मजीद यूनिट की जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. Reserves are dollars included in our cost estimate to mitigate cost risk by allowing for future situations that are difficult to predict. रिजर्व आप कब लगाएंगे? जब आप कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे. कॉस्ट एस्टिमेट क्यों करेंगे? आप अपने कॉस्ट रिस्क मिटिगेट करना चाह रहे हैं, और वो क्यों करेंगे? ताकि आपकी जो फ्यूचर सिचुएशन है वो सिक्योर हो. Contingency reserves allow for future situations that may be partially planned for, sometimes called known unknowns, and are included in the project cost baseline, recruiting and training costs for expected personnel turnover during a project. कॉन्टीजेंसी रिजर्व मतलब कि आपने एक काम करना है और इस फ्यूचर सिचुएशन के आपके प्रोजेक्ट के अंदर रहते रहते आपको पता है कि ये चीज़ साथ कॉन्टीजेंट होने वाली है, तो आपने उसके लिए जो भी पैसे या जो भी रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं वो आपके कॉन्टीजेंसी रिजर्व है. उसमें एग्जांपल दी हुई है लाइक नोन अननोन, मतलब आपको पता भी है कि ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बनने वाले हैं, बट स्टिल यू आर ट्राइंग के अच्छा ठीक है अभी तक जब तक चल रहा है. उसके बाद है मैनेजमेंट रिजर्व्स. मैनेजमेंट रिजर्व्स जो है वो आपके अननोन नोन्स हैं. मैनेजमेंट रिजर्व्स अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर अनप्रिडिक्टेबल, मतलब वो चीज़ें जो कि अनप्रिडिक्टेबल. अब ऊपर उसने क्या बोला था कि आपने रिक्रूटमेंट, अगर आपने कोई एक काम नया शुरू कराना है तो आपको रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करानी पड़ेगी. अब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो समाउ दी अदर आपके कलीग के लिए डायरेक्ट है जिसने कोई चीज़ सीखनी है और उसके बाद आपके ऑफिस के ऊपर जाके अप्लाई करनी है. तो अगर तो ऐसा हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आप कॉन्टीजेंसी रिजर्व के अंदर है, लेकिन अगर वो उस तरह से भी शामिल नहीं है तो फिर आप मैनेजमेंट रिजर्व के अंदर है. एक्सटेंडेड एब्सेंस ऑफ अ मैनेजर सप्लायर गोज आउट ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपने आपका मैनेजर जो है वो मुसलसल छुट्टियां करता जा रहा है या आपका जो सप्लायर है वो बिजनेस से निकल गया है,
तो ये कुछ इस तरह के कॉस्ट हैं जो कि आपको इनडायरेक्ट पड़ेंगे डायरेक्टली।